Yes, and the match is will have to start. Yes, the signal has been given. Mahesh Makwana and Anil Upadhyay. So here we go. Chandan, right arm over the wicket to the right hand batsman Akash. First delivery, it's a Yorker one. Just play toward the mid off and batsman get the first single. And the open is account with the straight drive, play toward the short mid off region, and the score started with one. So open is account batsman Akash, and the next batsman is on strike Sandeep Patil, in form batsman. What a batsman he is. So opening batsman champion King Sports is quite a terrific batting lineup as far as Kingsport is concerned. Once again, Chandan. Oh, it's shot outside the off some delivery. They wanted to clear toward the cover but couldn't get right elevation. Didn't get proper connection at the end of this dot delivery. Score as it is 1. We are watching the match between Rajan 11 Ziddhi Maratha Shimpoli versus champion King Sports. Rajan 11 have won the toss and decided to field first. They invite champion Kingsport to bat first. Chandan, right arm over the wicket. Short delivery, pull it hard toward the deep square leg region. And the fielder is going there, but it feints for 4 runs. So welcome boundary to champion Kingsport and score moves to 5. The mid off and collect only 1 run. Open is down. Then the second, it was a beautiful delivery. Didn't get proper timing by the batsman Sandeep. And Sandeep now played a genuine stroke toward the deep mid wicket for 4 runs. So welcome boundary. They scored a 4 and the score total is 5. Once again, Chandan. Oh, what a shot! But there is a chance. Someone is under it. And what a catch! Beautiful catch has been taken mid-off player. Just Team Rajan 11, please send your extra play in the commentary box immediately because what a catch has been taken. Sandeep Patil back to the pavilion, the big danger man. So yes, the new batsman Aditya is coming now. So it's necessary to just build a big partnership, but unfortunate the opening pair the first batsman back to the pavilion. Over to you, sir. A magnificent catch, I will say, the way he was judging the ball and he went to the close boundary. And when you convert a good stroke in good catch, it is really appreciated. And the way the catch has been taken, and it was of Sandeep, that he was a opening batsman, and he played for 5 minutes. It took 3 balls, and he scored 4 runs. After score is 6 for the loss of 1. So new batsman is on strike. Left hand batsman Aditya. So the most important sir now responsive on the shoulder Aditya. So as non-striker batsman Aka just carry on the inning because first 2 overs are mandatory power play. This is really good that they are sending the left-hander in number 3. Now left-right combination will make a difference. Next delivery outside the off stump and umpire is given it's a wide. So 1 extra run adding in the score in the form of wide. Score moves to. I really appreciate the way the tournament has been organized here. Rajendra Sanap Memorial Trophy 2023. The organizer is Ajinkya Sanap and Ganesh Sanap. Ganesh Sanap, who is in the United States of America, watching this tournament. And this is the 4th match of today. Yes, here we go. Once again, Chandan to Aditya. Just flick it toward the onside
and deep mid-wicket player just collect quite comfortable, and both the batsmen just comfortable with one score moves to 7. The first over is in progress. All the batsmen are playing good footwork, good body language, good positiveness, beautiful strokes. We have seen the last inning of Umar, who scored 29 runs in 11 balls, having a man of the match. Absolutely right. What a knock he played for Trident Navi Mumbai. Absolutely magnificent knock by Umar. Once again, Akash just started with first run, but now in the last delivery of this first over, Chandan to Akash. Oh, it's another beautiful delivery. Didn't get proper connection. Once again, batsman Akash, and the end of the first over scored one loss of 7. इस तरह से एक रन जो शुरुआत हुई थी उसके बाद 7 रन अब बने हैं और 1 विकेट के नुकसान पे सर। नहीं, यहाँ पे एक बात पे जरूर कहना पड़ेगा, संदीप बहुत अच्छे बैटिंग कर रहे थे, 4 रन उन्होंने बनाए। इसी बात को ध्यान करते हुए बाद में चंदन ने बहुत अच्छी उनके ग्रीप रनवे रिलीज ऑफ द फॉलो थ्रू, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, प्लेन बॉलर है, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 विकेट उन्होंने इस ओवर में लिया है, 7 रन बने हैं। और ये मैच आप देख रहे हो फर्स्ट राउंड का, ये आप तीसरा मैच देख रहे हो, किंग स्पोर्ट्स वर्सेस राजन 11 जिद्दी मराठा शिंपोली ने फील्डिंग लिया है, चैंपियन किंग स्पोर्ट्स को आमंत्रित किया और चैंपियन किंग स्पोर्ट्स ने यहाँ पे पहले ओवर के बाद लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हमें अभी आदित्य और आकाश के माध्यम से देखने को मिल रहा है। देखने आने वाले 5 ओवर में क्या परफॉर्मेंस देखते हैं, इस पे ध्यान होगा। ओवर टू राजेश खुड़े। यस सर, और जिस तरह से यहाँ पर शुरुआत हुई थी, जहाँ पर टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था आकाश जहांगीर, जो इस टेनिस विश्व में इस साल जिस फॉर्म से चल रहा है, इनसे बड़ी उम्मीद रहेगी। और जब नॉर्थ मुंबई में ये बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो बड़े बड़े हिट लगाते हैं, और माहिर खिलाड़ी उनके साथ आदित्य को सहयोग देना होगा। नहीं, एक बात तारीफ काबिल है, आज मुंबई क्रिकेट के एसोसिएशन के बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे खेलते हुए हमें नजर आए। ये ऑनर है, प्राइड है यहाँ पे राजेंद्र सानप मेमोरियल ट्रॉफी के लिए। गेंदबाजी के लिए तैयार शैलेश, अब गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज आदित्य के लिए, जहां पर शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ, एक खिलाड़ी शॉर्ट स्क्वायर लेग पर और शॉर्ट फाइन लेग। पहली गेंद, और इस गेंद को खेला है स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन दंदनाता सनसनाता 6 रन। गेंदबाजी के लेते हैं शैलेश, अगली गेंद, और फिर एक राणे बल्ले से यहां पर, लेकिन वहां पर मौका, एक तेरी एक मेरी, टीट फॉर टैट, बेहतरीन कमबैक किया शैलेश ने, और राजन ने आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा ओवर चल रहा है और 13 रन अभी तक बन चुके हैं यहाँ पे राजन 11 जिद्दी मराठा शिंपोली चैंपियन किंग स्पोर्ट्स के सामने। तो चॅम्पियन किंग स्पोर्ट्स मधले बघायचं आता बाकी के जो प्लेयर्स आहे काय या ठिकाणी काय परफॉर्मन्स दाखवत आहे त्याच्यावर लक्ष राहील, कारण काय की त्यांचे मेन प्लेयर संदीप आणि आदित्य, संदीप चांगला फलंदाज होता, आकाश अजूनही मैदानावर आहे, आदित्य या ठिकाणी जो धावांचा वेग वाढवेल असं वाटलं होतं त्याच्यावर पूर्णविराम लावलाय। आता अमित येतोय आणि डबल ए आकाश आणि अमित संघाला कुठपर्यंत घेऊन जातात बघावं लागेल राजेश। नक्कीच आपण तर पाहिलं तर अमित पाटील आता आलेले आहेत, मॅन फ्रॉम घाटकोपर। आपण पाहिलं विक्रोळी परिसरातील काही निवडक खेळाडू ज्यांनी रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये अप्रतिम कामगिरी केल्यानंतर गेल्या 4 ते 5 वर्षांमध्ये आपल्या नावासमोर जे वलय निर्माण केले त्यापैकी अमित पाटील एक डेंजर बॅट्समन हा देखील आहे। मात्र एक चांगली सुरुवात देणं गरजेचं आहे, कारण पॉवर प्लेचं दुसरं षटक निर्णायक आहे आणि यामध्ये अजून धावा येणं गरजेचं आहे। आकाशराव स्ट्राईकला अमित, गोलंदाजीसाठी शैलेश, पुढचा चेंडू शैलेशचा आणि सरसावत पुढे निघाले होते।
पंचांकडे दाद मागितले ते कुठल्याही प्रकारचा आत्मविश्वास जास्त दिसत नाही. अपील केलं होतं, उत्साह देखील तितकाच कमी होता कारण यष्टीरक्षक गौरांग आहे त्यांनी जास्त अपील केलं नव्हतं. चेंडू डॉट येते निर्धाव. नाही, चांगला चेंडू होता. आम्ही तो ड्रिल करून दाखवत असताना थोडे थांबले असते, बॉस घेतलं असतं, चेंडूला आपल्याकडे येऊन दिल्यानंतर बॅटचा पेस फोन केलं असतं, ते चित्र वेगळं असतं. ओटो राजेश. शैलीचा पुढचा चेंडू आता मात्र हो या ठिकाणी संधी होती. डबल माइंड झाले. पहिल्यांदा नटराज स्ट्रोक साठी गेले होते. शॉर्ट चेंडू मिळाला होता. डीप स्क्वेअर लेगला बघा एक क्षेत्ररक्षक तिथे आहे ज्या चेंडूला खेळण्यासाठी. नंतर थोडंसं या ठिकाणी पवित्रा वेगळा घेतला. द्विधा मनस्थिती होती आणि त्यामध्येच चेंडू त्या ठिकाणी खाली आपण लाईन होताना पाहिलं. कदाचित त्या ठिकाणी स्टंपवर लागला असता, मात्र दुर्दैव नाही सुदैव देखील म्हणू शकतो आपण आणि नशिबाची साथ आहे अमितला. आता मात्र या ठिकाणी सरसावत जागेवरूनच कट करायला गेले होते स्लाइस आणि यष्टीरक्षक गौरांगच्या हातामध्ये झेल देऊन परततोय चॅम्पियन्स किंग स्पोर्ट्स संघाचा. बाग पाडला फलंदाजाला छेडण्यासाठी आणि चेंडू एजला लागून यष्टीरक्षकाच्या हातात त्या ठिकाणी जातोय आणि त्याने यश प्राप्त होतोय. धावसंख्या आपण बघतोय ती झाली मैदानावरती 3 गडी बाद झाले. धावसंख्या आहे ती 13. तिथे थांबलेली आहे. पहिलं षटक चंदनने हाताळतो, दुसरं षटक शैलेश हाताळतोय आणि जिद्दी मराठा सारखाच खेळत असताना आपल्या संघाला यश प्राप्त करून देते. टॉस जिंकल्यानंतर फिल्डिंग घेतली होती. आता चॅम्पियन किंग स्पोर्ट्सनी आता त्यांच्या आतापर्यंत 3 फलंदाज संदीप, आदित्य, अमित परतलेत आणि आकाश आणि अमोल संघाला कुठपर्यंत नेत आहेत लक्ष ठेवावं लागेल या ठिकाणी. नक्कीच आकाश आणि अमोल या दोघांवर मोठी जबाबदारी असेल. दुसरं षटक जे आपण पॉवर प्लेचं पाहतोय कारण आतापर्यंत सर जर पाहिलं आज पहिली मॅच, दुसरी मॅच, त्यानंतर या तिसऱ्या मॅचमध्ये ज्या प्रकारची सुरुवात झाली होती मॅक्झिमम पहिल्या पॉवर प्लेमध्ये जास्त धावा होऊ शकल्या नाही. काही अपवाद वगळले तर ज्यामध्ये आपण 12 बॉलमध्ये 25-26 पाहिल्या. मात्र या ठिकाणी हा देखील इतिहास आहे. राजेंद्र सानप मेमोरियल ट्रॉफीमध्ये 2 ओव्हरमध्ये 40 देखील धावा झालेल्या आहेत. पुढचा चेंडू शॉर्ट चेंडू असतो जास्त शफल केलं होतं, तिथून त्या चेंडूला पुल करायला गेले. पंचांचा इशारा येतो वाईट. एक अवांतर धाव आणि एका अवांतर धावीने धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजेच 13. So once again the last only ball left of this mandatory power play second over. It is going to be starting from the proceeding commentary box in Shailesh and the batsman Amol is getting ready for the next delivery. Last ball of mandatory power play second over. Oh, there is a chance. Appeal has been given but no clue whatsoever in the hands of the batsman. They're waiting for the big one toward the mid wicket and umpire has given it's a leg by. So one extra run adding in the score. Score moves to 14. Lost of 3 wicket after 2 overs has been completed. In the first over we got 7 runs and as far as second over is concerned we have seen 8 runs. But I will appreciate the Shaili, the way he bowled from the good length. This delivery was also very beautiful delivery. As far as score I am telling you this is after 2 overs 15 15 dhava. 15 for the loss of 3. Champion King Sports. And this is the first on third match. Let me tell you a lot of information as far as this tournament is concerned. We started the tournament at 10:15. The ball has been released at 10:37. The first match was between Sanjay 11 Daisar Boys and Sai Mauli. Sanjay 11 Daisar Boys won. Trident 11 Navi Mumbai versus Marshall. Trident Navi Mumbai won. Then we had a second round match between Sanjay 11 Daisar Boys and Trident 11 Navi Mumbai. They had a beautiful match and good batting from Mumbai. They won the 63 runs target and they won the match and they went to the semi-final. And this is the first round, the third match. King Sports, Champion King Sports was Rajan 11, Jiddi Maratha, Shimpoli. So here we go with the third over, starting from the second spell. Chandan, Rajan 11, Jiddi Maratha, Shimpoli versus Champion King Sports. Champions King Fort really on back foot. But yes, someone has to take the responsibility here and the batsman is capable. Is going to start the proceeding now. Amol. Chandan to Amol. Outside the off stump, but given it's a wide, so one extra run adding in the score. Score moves to 16. Angling the delivery. You can see when the ball is angled and he's taking the ball outside the off stump.
Our MC umpires, you can see Mahesh Makwan, Anil Upadhyay and Dheeraj Ole, they are doing a beautiful job as far as the referees of ground. And as I told, this is the 8th year of Rajendra Sanam Memorial Trophy, increasing the responsibility for the organizer. And they are delivering that responsibility, having a beautiful tournament as far as this first day is concerned. You can see this tournament on 7th and 8th also. You can see semi-final and final will be played in this beautiful helipad ground on 8th. Yes, here we go. Chandan to Amol. Full toss delivery and just plays toward the long on. Shailaj is there. The batsman comfortable with one batsman really waiting for the big one. Someone has to take the responsibility here. Amol or Akash, just change your gear because now you are in 70 in the score and it will be around 65 to 70. But whatever the bowling analysis has been done by Shimpoli team, good work has been done. Chandan in the first over, so as in the second over, Shailesh. Now we have seen in the last match after making 62 also Sanjay 11 Daisar boys Bipin Zatakia's team, they can't defend because it was a long batting strong lineup. Yes, just sweep toward the short fine leg region, just clear the fence, but unfortunate they get proper connection by batsman Akash Jangid. Akash is beautiful to watch and in right form, but unfortunate. Whatever the strokes, the timing ball is not proper as far as Akash is concerned. Waiting for another big one from Amol. Let's see what kind of strategy they're looking for against Chandan. There is a deep mid wicket, short square leg, short fine leg, short third man, backward point, long off and cover. These are the fielding placement for Amol. Chandan. Next delivery to left hand batsman. Amol is on strike. Fuller lane delivery just play toward the deep mid wicket. One run and the batsman going for the second and danger and Akash is there. Comfortable with 2 runs. Good running between the wicket by Akash Jangid. The call has been given Akash to the danger end. He has to go there and comfortable with 2 runs. A beautiful running between the wicket when the little bit relaxation in the fielder and they took the first single. They said that we should come for the 2. They completing the run in a beautiful way. But one thing I want to say, Chandan got a very good future prospects. He got grip, runway, releases will really follow through. He has to keep the line of length, which we seen in the first spell. Yes, that's kind of bowler he is. Chandan, next delivery. Fuller length, full toss and batsman hammered over the wideish long on for another big one. After a second spell is now you can see this was a great full toss and any batsman will wait for this type of delivery. He went for a 6. Total 11 runs gone as far as this over is concerned. The score moves to 26 for the loss of 3. Champion King Sports. Champion King Sports, they are looking for another 30 to 35 runs. More than 65 because whatever the batting lineup they have, really they are looking for dangerous. जिस तरह से अब देखेंगे यहाँ पर जो चल रहे बल्लेबाज अमोल और सर जिस तरह की बल्लेबाजी अब कर रहे हैं, जिस तरह का फुल टॉस गेंद जिन्हें मिली थी और बेहतरीन स्ट्रोक पर तब्दील किया था जो स्ट्रोक. Chandan, the next delivery, another wake up call for the batsman point of view. Umpire just waiting there. It's a bye. So it's a really wake up call for the batsman point of view. I want to tell you one thing, that this was the originality of Chandan, the ball which he delivered from the good length spot. Sometime he forget, the concentration comes down, he goes for a full toss or long hop or over pitch. He has to go for a good length. He had that in the first over also, in the first spell also. Lot of tips has been given from his supporters, from his teammates, and he has to implement. It is a learning process. Yes, it's a learning process. He has that quality. Let's see what kind of next of deliveries will bowl
Chandan is getting ready. So as batsman Akash Jangid still just playing wait and watch cricket. Full toss delivery. There is a chance. Someone is under it. And Akash Jangid back to the pavilion. The most crucial. खुश है, टॉस जीता है, क्या डिसीजन लेंगे? लोग फील्डिंग करेंगे पहले। बिल्कुल, समय हमारे पास बहुत कम है। ऑल द बेस्ट अक्षय, थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर एक फोटो हो जाएगा, फोटोग्राफ्स, और उसके बाद में चलेंगे कॉम्पोस्ट की तरफ। कुटुंबेश्वर टीम ने टॉस जीता है और पहले बिल्कुल अगर देखें तो फील्डिंग करने का फैसला लिया है। नक्कीच या ठिकाणी फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे, ज्या ठिकाणी आपण पाहतोय। मात्र यानंतर या पुढील 3 ओव्हरमध्ये काय घडणार आहे, काय बिघडणार आहे हे धावतं समालोचन ऐकवण्यासाठी पुन्हा एकदा आमच्या कमेंट्री बॉक्समध्ये बदल होणार आहे। प्रशांत आदवडे हिंदीमधून आणि त्यांच्याबरोबर आपण कमेंटसाठी पाहणार आहोत आमच्या आदरणीय गुरुवर्य बालसुब्रमण्य अय्यरचा। धावसंख्या 27, 3 षटकानंतर 4 गडी बाद। प्रथम फलंदाजी करताना चॅम्पियन्स किंग स्पोर्ट्स। ओव्हर टू सर। आइए इस मैच के पास मैच के तरफ जाते हुए 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद 27 रन बनता हुआ। जहाँ तक रन रेट का सवाल है, 9 रन प्रति ओवर यहाँ पे चैंपियन किंग स्पोर्ट्स ने अभी तक रखे। उसके लिए उन्हें 4 प्लेयर्स यहाँ पे उनके आउट होते हुए, आकाश 2 के ऊपर, संदीप 4 के ऊपर, आदित्य जिन्होंने अच्छी बैटिंग की 7 के ऊपर, अमित 0 के ऊपर, अभी अमोल एक तरफ से यहाँ पे बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए उन्हें साथ देने के लिए रोन आगे। गेंद अंदर आती है, गेंद को ऑन साइड में उठाना चाहते थे, गेंद चली गई है सिल मिड ऑफ की तरफ, उठाना चाहते हैं लेग बाय का आप देख सकते करार करते हुए हमारे अंपायर्स यहाँ पे अनिल उपाध्याय, महेश मक्कन और धीरज जोली, तीनों एमसीए के बहुत अच्छे अंपायर्स यहाँ पे अच्छे परफॉर्मेंस देते हुए। आपको बता दूं इसके बाद मैच खेला जाएगा श्री साई 11 और गुंडमेश्वर संघ इनके बीच में। गंडमेश्वर संघ इनके बीच में। दोनों टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट करता हूं आप यहाँ पे उपस्थित हो तो टॉस के लिए आ जाए। श्री साई 11 और गंडमेश्वर हो गया अभी थोड़ी देर पहले। धन्यवाद इंफॉर्मेशन प्रशांत आदवड़े ने हमें देते हुए। आज के दिन का फर्स्ट राउंड का लास्ट में जो क्लीन बोल्ड यहाँ पे करते हुए, ऐसे विकेट की जरूरत है यहाँ पे जहां तक राजन 11 जिद्दी मराठा श्री साई 11 और गरुड़मेश्वर संघ के बीच में। तो गरुड़मेश्वर ने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग लिया और आमंत्रित किया श्री साई 11 को बैटिंग के लिए। इसके बाद होने वाला जो मैच आप देख पाएंगे। आइए आप दर्शक जो अभी आए यहाँ पे इस सर सेनापति अरुण कुमार वैद्य क्रीड़ांगन में, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको बता दूं ट्राइडेंट नवी मुंबई ऑलरेडी ये टीम सेमीफाइनल में जा चुकी है। अभी जो बात की जो 4 टीम है उसमें से एक टीम सेमीफाइनल में जाएगी। आज का दिन का ये चौथा मैच यहाँ पे चैंपियन किंग स्पोर्ट्स और राजन 11 जिद्दी मराठा के बीच में, शिंपोली के बीच में होता हुआ। जहां तक सवाल है स्कोर का आपको बता दूं, चौथा ओवर चल रहा है और चैंपियन किंग स्पोर्ट्स ने अभी तक रन बनाए 28, विकेट खोए मैदान के ऊपर उन्होंने 5। इस बार अपील होता हुआ और एक विकेट गिरता हुआ देख सकते अक्रॉस द लाइन खेलने गए और यहां पे उन्हें आउट करा देते उनके सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे। गरुड़मेश्वर संघाच्या सर्व खेळाडूंना विनंती आहे
आपण यावेळेला व्यासपीठाच्या समोर यायचं, त्याचबरोबर श्री साई 11 पोर्टुगेजसाठी या ठिकाणी दोन्ही संघाचे जे कॅप्टन आहेत आपले सर्व खेळाडू घेऊन आमच्या समालोचन कक्षासमोर येतील. थैंक यू प्रशांत दादावड़े. हमारे शिष्य राजेश कुड़े, प्रशांत दादावड़े भी हमारे शिष्य है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों में. आज बहुत सालों के बाद वो मेरे साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं और ये सपना था राजेश कुड़े, प्रशांत और हम साथ में बैठे. नो डाउट आने वाले दिनों में हम बैठेंगे. लेकिन जहाँ तक बोरली का सवाल है, मुझे बोरली वालों ने बहुत प्यार दिया है और 2012 के बाद मैं आज यहाँ पे कमेंट्री कर रहा हूँ. पिछली बार मैं यहाँ पे कमेंट्री करने आया था डे एंड नाइट का टूर्नामेंट, और यकीनन इसके पहले एमपी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट का टूर्नामेंट हमने किए कांदेवी बोरली के बीच में. इस बार गेंद अच्छी थी, गेंद मिडिल स्टंप पे थी, गेंद को अच्छी तरह से ऑफ वॉली करते गेंद को ड्राइव किया ऑफ तरफ, ऑफ साइड में, और 1 रन पूरा कर लिया यहाँ पे हमारे बैट्समैन मैदान के ऊपर करण ने. और अभी देखना है मैदान के ऊपर अमोल जो अच्छे बैटिंग कर रहे हैं, अमोल और करण को इस स्कोर को अच्छे टारगेट तक लेके जाना पड़ेगा. जहाँ तक हमने देखे मैचेस 63 का स्कोर पिछली बार रहा जो चेस किया गया. उमर ने अच्छी बैटिंग की, 11 गेंदों में 29 रन उन्होंने बनाए. इस बार गेंद बैट और पैड के बीच में अच्छी तरह से बैकलिफ्ट देते हुए गेंद को ड्राइव किया ऑन साइड में, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ, और वहां पे जब तक गेंद पकड़ते 1 रन पूरा होता हुआ, 1 रन का इजाफा और स्कोर आगे बढ़ता हुआ आपको बताता हूँ 30 रन. और ये 4था ओवर चल रहा है, इसके बाद और 2 ओवर बचा हुआ है. आपको बता दूं ये सबसे बड़ी बात है राजेंद्र सानप मेमोरियल ट्रॉफी का कि वो 6 ओवर के मैचेस खिला रहे हैं. उन्होंने ये भी बताया कि सेमीफाइनल और फाइनल 8 ओवर का होगा. इस बार गेंद गुडलिंग से थी, गेंद वहां पे देख सकते हैं अंपायर का उंगली ऊपर जाता हुआ अक्रॉस द लाइन खोलने की कोशिश की, गेंद ऑन द पैड लगती हुई. जब खेले थे वो झुके हुए थे, और झुके हुए थे तो गेंद थोड़ी नीचे भी थी. इसी को ध्यान में रखते हुए अंपायर ने उन्हें प्लम बेल भी दिया है, और एक विकेट, 6ठा विकेट यहाँ पे खोते हुए. जहां तक सवाल है चैंपियन किंग स्पोर्ट्स का सवाल है, स्कोर बनता हुआ 30 रन. जहां तक ओवर आपको बता दूं मैदान के ऊपर 4 ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के बाद 30 रन बनता हुआ. जहां तक पिछले ओवर में खाली 3 रन आए, और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी शैलेश ने यहाँ पे की अपने लाइन एंड लेंथ रखते हुए. और आप देख सकते हैं 4 ओवर के बाद 30 रन बनते हुए चैंपियन किंग स्पोर्ट्स का. जहां तक रन रेट का सवाल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रन रेट उन्होंने 7.5 का रखा है. अभी भी 2 ओवर बचा हुआ है. देखिए आकाश आए थे, संदीप आए थे, आकाश ने 2 रन बनाए, संदीप ने 4. आदित्य, यहाँ पे संदीप जल्दी आउट हुए, आदित्य भी जल्दी आउट हुए, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे लेफ्ट हैंडर, 7 रन बनाए. अमित 0, उसके बाद अमोल एक तरफ खेल रहे, बहुत अच्छे बैटिंग कर रहे, 13 के ऊपर खेल रहे. रोहन 0 पे आउट हुए, देवेन 0 पे, करण अभी 1 के ऊपर आउट होते हुए. अगर आपका मिडिल ऑर्डर और ओपनिंग अगर बैटिंग नहीं करती है तो ये सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि क्रिकेट इज अ टीम गेम. अगर आप पूरे 11 के 11 प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं करते, अपना परफॉर्मेंस को दिखाते नहीं एज अ बैट्समैन, तो एक अच्छा स्कोर बन नाही सकता. प्रशांत दादावडे. निश्चितच या मॅच मध्ये जर बघितलं तर प्रत्येक वेळेला गोलंदाजांनी स्ट्राईक केलंय, विकेट घेतल्यात, आणि ठराविक अंतरानंतर विकेट जेव्हा जातात तेव्हा भागीदारी दिसत नाही. आता कुठलाही बॅट्समन आपण बघा तर कुठलाही बॅट्समन दुहेरी अंकामध्ये नाहीये, सिंगल डिजिटमध्ये आहे, आणि खूप छान सुंदर गोलंदाजी, अचूक आणि नियंत्रित गोलंदाजी केले, त्याचा फायदा गोलंदाजांना मिळालेला आहे. भागीदारीची आवश्यकता बॅट्समनसाठी आहे. प्रशांत गेंदबाज हमारे कमेंट बॉक्स के तरफ से गेंदबाजी करेंगे, और बैट्समैन है हमारे मैदान के ऊपर अमोल, और यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लीन बोल्ड. अमोल ही एक ऐसे प्लेयर थे जो बैटिंग कर रहे थे, वह रन बना रहे थे अपने टीम के लिए, और अच्छी गेंदबाजी. पिछले बार शैलेश ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए 3 ही रन दिया था, और यहाँ पे प्रशांत आने के बाद आप देख सकते हैं पहले गेंद पे यहाँ पे क्लीन बोल्ड लेते हुए 8वां विकेट यहाँ पे गिरता हुआ. आमचे वॉटर स्पॉन्सर प्रतीक सावंत यांचं आगमन झालंय, त्यांचं मी मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतोय. राजेंद्र सानप मेमोरियल ट्रॉफी 2023 मध्ये आमचे सहकारी समालोचक आशिष उपाध्याय सुद्धा स्टेजवर बसलेले आहेत. आता थोड्या दिवसापूर्वी अंडरआर्म बॉक्स टुर्नामेंटसाठी 12 तास आमच्या बरोबर होते. राजेश कुळे आम्हाला मदत करायला तिकडे आले 3-4 तासासाठी. तो दाव संख्या झाली है 33. आइए वापस हिंदी में बात पढ़ते हैं. 30 रन बनते हुए, जहाँ तक सवाल है आपको बता दूं, ये मैदान के ऊपर 5वां ओवर चल रहा है और स्कोर कम हुआ है क्या? यह स्कोर कम बना है और 8 विकेट गिरते हुए 30 फॉर द लॉस ऑफ 8. चैंपियन किंग स्पोर्ट्स ये टीम यहाँ पे खेलती हुई, ये पहली टीम थी जिसके विकेट ज़्यादा गिरे और रन भी कम बने. इसके बाद अभी भी 2 ओवर बचा हुआ है, अभी भी 2 विकेट बचा है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्राइक के ऊपर बैट्समैन है मैदान के ऊपर प्रतीक,
उनके अच्छा स्टांस है उनका, देखना है क्या परफॉर्मेंस दिखा है। अच्छी गेंद, फुल लेंथ की थी, बैक का फेस ओपन किया था लेकिन खेला नहीं, गेंद को छोड़ा उन्होंने। देखिए ड्रिल करके दिखाते हैं, रुकना चाहिए था, फॉली करके लेना चाहिए था, ड्राइव करना चाहिए था, क्योंकि ये मैदान को अगर 5 ओवर चल रहा है, ऑलरेडी उनके टीम के पास रन नहीं है, रुकने पड़ेंगे, रन बनाने पड़ेंगे। अगर आपके पास रन होगा तो ही आप लड़ सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और वही यहाँ पे देखना है, जो मिस्टेक उन्होंने एक डॉट के माध्यम से की, अगली गेंद में क्या फेस करते हैं प्रशांत प्रतीक के लिए। यहाँ पे कमेंट बॉक्स की इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, थोड़े से आगे बढ़े थे, इसको भी देखते हुए। देखिए अच्छे गेंदबाज वही होता है जो आखिरी वक्त तक बैट्समैन का पैर को देखता है, उसका फुटवर्क को देखता है। उसी को देखा कि जैसे वो आगे बढ़े, अपने बॉलिंग की जो गेम स्ट्रेटजी उसमें चेंज लाया और उन्होंने प्रत्येक, यहाँ पे प्रशांत ने गेंद को शॉर्ट ऑफ लेंथ से बाहर निकाला। इस बार गेंद गुड लेंथ से आते हुए स्ट्रेट डिलीवरी, वापस एक बार बीट होते हुए आप देख सकते हैं, नहीं इस बार गेंद बाहर गई है। इसको देखते हुए अंपायर ने वहां पे वाइड करार दिया और वाइड के माध्यम से 1 रन मिलता हुआ, और जो रन बहुत देर तक रुका हुआ था 30 के ऊपर, आगे बढ़ता हुआ 31 के ऊपर। 3 से 4 कदमों का स्टार्ट। यहां पे प्रशांत अपना स्पीड अपने शोल्डर के माध्यम से लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट दिखाते हुए अच्छी गेंद थी, अच्छा फ्लिक करते हुए गेंद को ऑन साइड में बॉटम एंड के माध्यम से स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है। पहला रन पूरा किया, दूसरा रन के लिए प्रतीक जाते हुए वहां पे 2 रन पूरा करते हुए अपना क्लास ये फ्लिक के माध्यम से दिखा दिया है कि वो अच्छे बैट्समैन है, क्योंकि फ्लिक खेलना इतना आसान नहीं होता। मोहम्मद अजहरुद्दीन को याद कीजिए, जब इमरान खान इन स्विंग डालते थे, पीछे आते थे, रुकते थे, अच्छी तरह से टर्न करते थे, और फ्लिक खेलना बहुत ही मुश्किल होता है। जिसके पास अच्छा फुटवर्क होता है वही खेल सकता है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे 33 रन। आदावडे अत्यंत महत्त्वाचा खेळ आपण मैदानामध्ये पाहतोय, बॅट्समन स्ट्राईक रोटेट करतात, परंतु शेवटचे काही चेंडू शिल्लक आहेत या इनिंगमधले, मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता आहे, चौकार षटकारांची आवश्यकता निश्चितच आहे। खूप चांगली बॅटिंग मैदानामध्ये निश्चितच होते आहे। इस बार अच्छा शॉट, गेंद चली गई डीप में, जब तक कि फील्डर वहां पे कर करते। एमएचबी कॉलोनी सर सेनापति अरुण कुमार वैद्य क्रीड़ांगन, जिसे एलिपैड भी कहा जाता है, यहाँ पे ये क्रिकेट खेलता हुआ जब मैं मुड़ के पीछे 40 साल देखता हूं, तो ये एमएचबी कॉलोनी ने कितने अच्छे प्लेयर्स हमारे टेनिस बॉल्स को दिए। अभिनंदन। तो मुझे यहाँ पे अजिंक्य राजेंद्र सानप कहते हुए कि एमएचबी बॉयज के बच्चों ने भी बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे दिया है, और वजीरा जो गांव है उसके बच्चों ने भी बहुत बड़ा योगदान इस राजेंद्र सानप मेमोरियल ट्रॉफी 2023 के लिए दिया है। तो यहाँ पे 6 रन आता हुआ नाटू की तरफ से, और ये 6 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 के ऊपर 5 ओवर के बाद विद द रन रेट ऑफ 8 पर ओवर। तो आखिरी ओवर डालने के लिए आ गए अभी चंदन ने 2 ओवर डाले, शैलेश ने 2 ओवर डाले, और आखिरी ओवर डालने के लिए नई गेंदबाज आते हुए अजय। अच्छी बैटिंग। देखिए आपका टेल एंडर 9 और 10वां बैट्समैन इतना अच्छा बैटिंग कर रहा है। नाटू ने एक 6 मारा है, प्रतीक ने भी अभी तक 5 रन बनाए, और प्रतीक और नाटू नंबर 9 नंबर 10 में आने के बाद अपने टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बरकरार रखते हुए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और जहां तक आज लिमिटेड ओवर्स का सवाल है, ऑलराउंडर्स बहुत बड़े पैमाने में लगते हैं, तब कहां जाके आपका अच्छा स्कोर बनता है। आदावडे निश्चितच या मॅच मध्ये जर बघितलं तर बॅट्समनने थोडासा वेळ घेतला, स्ट्राईक रोटेट केला आणि खराब चेंडू आला त्यावेळेला मोठे फटके खेळते, हे आपण मिस केलं होतं पहिल्या 4 षटकामध्ये। खूप चांगली बॅटिंग आता केलेली आहे। अजय नई बॉलर, शॉर्ट ऑफ लेंथ चेंडू, गेंद को ऊक किया है, गेंद चली गई है फाइन लेग के पास, वहां पे 4 रन जरूर मिलेगा, और ये 4 रन से स्कोर को आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छा शॉट। नंबर 10 के बैट्समैन इतने अच्छे बैटिंग कर रहे प्रतीक, एक फ्लिक दिखाया, एक हुक दिखाया, और नट्टू ने भी एक 6 दिखाया, और 9 नंबर और 10 नंबर के बैट्समैन एक अच्छी पार्टनरशिप करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 44 के ऊपर, और खेल रहे यहाँ पे चैंपियंस किंग स्पोर्ट्स, चैंपियंस की माफी 9 और 10 नंबर के बैट्समैन अपने टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए। गुड क्रिकेट। ज्या पद्धतीने आता मैदानामध्ये मॅच होते, आपण भारत आणि श्रीलंका मॅच बघितलं तर प्रत्येक वेळेला त्यांचे जे टेलेंडर आहेत त्यांनी चांगली बॅटिंग केली। आज तसंच चित्र आपल्याला मैदानामध्ये बघायला मिळते, खूप चांगली बॅटिंग आपल्याला बघायला मिळते। 9व्या क्रमांकावरती कोलॅप्स झाल्यानंतर डाव पुन्हा एकदा सावरला जातोय। यकीनन यकीनन श्रीलंका का सब्जेक्ट यहाँ पे निकला प्रशांत दादावड़े ने। देखना अभी आने वाले बॉल्स में कितने रन्स यहाँ पे नट्टू और प्रतीक बनाते हैं चैंपियन किंग स्पोर्ट्स के लिए। आपको स्कोर वहां पर एक बात बता दूं, 44 इन द लास्ट ओवर, डेड ओवर चल रहा है ये। अगली गेंद अजय की, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ वापस एक बार हुक किया है, लेकिन वहां पे इस बार फील्डर रखा है कैप्टन ने गेंद को कवर करते हुए, और जब तक गेंद को कवर करते 1 रन का इजाफा,
स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45। तो गरुड़मेश्वर संघ की टीम एक अच्छे फोटोग्राफ ले सरफराज। एक मिनट, गेंद के पास जाते हो हम लोग सामने, वहां पे गेम स्टार्ट हो चुका है। 45 रन बनता हुआ। वापस एक बार अजय उठा दिया है गेंद को, लेकिन ये कैच नहीं होगा। गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर। अच्छी बैटिंग नंबर 10 के बैट्समैन ने। प्रतीक क्या बैटिंग कर रहे हैं नंबर 10 में आने के बाद। एक बाउंड्री दिखाया, अभी वापस एक बार बाउंड्री दिखाते हुए नट्टू ने भी बहुत ही अच्छी बैटिंग की, और दोनों अच्छी बैटिंग करते हुए मैदान को में स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 49 के ऊपर। सर जिस तरह से मुकाबला चल रहा है उस मुकाबले में बिल्कुल हालात कुछ अच्छे नहीं है, और खराब गेंद में कुछ खराब खेल में एक बार फिर कुछ अच्छा हो सकता है, और गेंदबाज के बल्ले से छक्का और एक बार फिर छक्का और चौका आ सकता है। तो बिल्कुल बीच मैदान पर सेंसिबल क्रिकेट टेलेंडर द्वारा अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों ने की है। गरुडमेश्वर संघ या ठिकाणी फोटो काढत असताना इस बार गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे। तो इस मैच से हम अशरफ खान को देखेंगे। नाइस टू सी अशरफ, ऑल द बेस्ट, मैग्निफिसेंट प्लेयर्स। उमर, अशरफ, घीसू, बिलाल, सब द ब्यूटीफुल प्लेयर्स। पुराने जमाने में साजिद को भी मुझे यहाँ पे याद आता हुआ, वन ऑफ द ग्रेट लेफ्ट हैंडर। तो यहाँ पे हम श्री साई लेवन को भी फोटो लेते हुए देखेंगे। इस बार गेंद को उठा दिया, व्हाट अ शॉट, लेकिन फील्डर थे वहां पे, बीट हुए। क्या बैटिंग कर रहे 10 नंबर के बैट्समैन यहाँ पे प्रतीक, तारीफे काबिल। और नट्टू और प्रतीक 9 नंबर और 10 नंबर के बैट्समैन इस नंबर में बैटिंग सत्तावन और 58 का टारगेट। मैं यहां पे जानना चाहूंगा नट्टू और प्रतीक ने कितनी पार्टनरशिप की, वो दोनों ने कितने रन की पार्टनरशिप की, क्योंकि ये 9 नंबर के 10 नंबर के बैट्समैन ने टीम के स्कोर को अच्छा बनाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे लिया, डिलीवर किया मैदान के ऊपर, अच्छा स्कोर अपनी टीम के लिए खड़ा किया। 26 रन की पार्टनरशिप यहां पे नट्टू और प्रतीक ने किया, और ये 26 रन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ऐसा मुझे लग रहा है। 12 गेंदों में 26 रन की पार्टनरशिप और 58 टू विन, 58 रनों का टारगेट यहां पे दिया चैंपियन किंग स्पोर्ट्स ने। राजन
बल्लेबाज थे, इन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की। 12 गेंद में 26 रनों की साझेदारी। अभी ये टोटल राजू अगर देखें तो फाइटिंग टोटल नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि लढणे के लिए काफी है। मजा आएगा इस मुकाबले में। नक्कीच लढण्यासाठी ही धावसंख्या फार महत्वाची आहे, कारण जर आपण पाहिलं तर 57 धावा केल्या आहेत, 31 वर त्यांचे 8 विकेट गेल्यानंतर 26 धावांची पार्टनरशिप 12 चेंडूमध्ये, ज्या ठिकाणी मोमेंटम शिफ्ट झालेला आहे। आता मात्र चॅम्पियन्स किंग स्पोर्ट्स संघाला, ज्या संघाकडे अभिषेक, करण, त्याचप्रमाणे जे गोलंदाज आहेत, यांनी जर पहिले 2 पॉवर प्लेच्या ओव्हर निर्णायक निघाल्या तर मॅच इज ऑन फॉर चॅम्पियन्स किंग स्पोर्ट। दुसऱ्या बाजूला जर आपण पाहिलं तर ज्या संघामध्ये राजन शिंदे, जर आपण पाहिलं तर राजन 11 जो संघ आहे यांच्याकडे देखील ती क्षमता आहे आणि हा संघ देखील शिंपोलीचा या ठिकाणी होऊ शकतात, करू शकतात, मात्र क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टनिटी। प्रारंभिक जोड़ी जो है वह मैदान के अंदर आना बहुत जरूरी है। जिस तरह से देखिए समय वक्त की बात करें तो आपके पास वक्त बहुत कम है, और इस समय के अनुसार आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रारंभिक जोड़ी राजन 11 के जो प्रारंभिक बल्लेबाज वो मैदान के अंदर जल्दी आए। वक्त जो है ना वो रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। मिनेश माळी यांना विनंती राहील, त्याचप्रमाणे मंदार, मिनेश आपण लवकरात लवकर सलामीची जोडी मैदानात पाठवायची आहे, कारण वेळेमध्ये आपल्याला आजचा दिवस देखील आपल्याला पहिला दिवस जो आपण पाहत आहोत राजेंद्र सानप मेमोरियल ट्रॉफी 2023चा, तो आपल्याला अतिशय चांगल्या प्रकारे, कारण प्रशांत सर पाहिलं तर 6 ओव्हर पुन्हा एकदा सुरू झालेत आणि फायनल 8 ओव्हरची म्हणजे जे सुरुवातीचं क्रिकेट होतं ते पुन्हा एकदा परत येतं आणि त्यासाठी पुन्हा एकदा एक पुढे पाऊल घेऊन चाललेलो आहोत राजेंद्र सानप मेमोरियल ट्रॉफीच्या माध्यमातून। चौकार षटकारांची तुफान आतषबाजी, अचूक नियंत्रित गोलंदाजी, बॅट आणि बॉल मध्ये जुगलबंदी, स्वतःला प्रसिद्ध करण्याची नामी संधी, अचूक स्कोरिंग, छान अंपायरिंग, ओघवत्या शब्दातलं समालोचन, दर्जेदार आयोजन। सनग्लासेस आणि पोर्ट्स कॅप या ठिकाणी दिल्या जात आहेत। मैदानामध्ये एक चांगली जुगलबंदी आपल्याला बघायला मिळेल, एक शानदार खेळ या ठिकाणी आपल्याला निश्चित बघायला मिळेल। बॅटर तयार झालेले आहेत, गोलंदाज सज्ज होतोय। 58 धावांचं आव्हान या ठिकाणी ठेवलेलं आहे। कुणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा मॅचचा दुसरा पडाव। कर तो 58 रनों की जरूरत है। राजन 11 टीम के कप्तान को मैं विनती कर रहा हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं, आपका अतिरिक्त खिलाड़ी कंपल्सरी पहली बॉल डिलीवर होने से पहले हमारे कॉम्बॉक्स में आना चाहिए। राजन 11 फिलहाल राजू मैच शुरू होता हुआ प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। मिनेश और वेदांत प्रमुख गेंदबाज के तौर पर बेबन के हाथ में गेंद है। पावर प्ले का पहला ओवर, जहां तक सवाल इस मुकाबले की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए है। पहली गेंद बेबन, ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद हवा में है, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, पहली गेंद पर सफलता। असं वाटतं की पूर्ण स्ट्रोक नव्हता, ज्या पद्धतीने नेहमीच स्ट्रोक खेळण्यासाठी प्रसिद्ध आहे मिनेश माळी, त्याच्या नावावर वेगळे रेकॉर्ड्स या परिसरामध्ये, मात्र पहिल्या चेंडूवर बाद होऊन परततोय मिनेश। और राजू इस मुकाबले में अगर बात करें तो बेबन प्रमुख गेंदबाज है, उनको सफलता मिली है।
आपने सही कहा कि वो पूरी ताकत इन्होंने नहीं लगाई थी, अधूरी मन से खेला हुआ शॉट था। दुविधा थी कि एक बार फिर वो ताकत लगाए या एक बार फिर सॉफ्ट हैंड से खेले, तो थोड़ी दुविधा रही और इसका फायदा बेबन को मिलता। पहले विकेट का पतन, मिनिश बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं। अब चक्कर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए सूरज, एक तरफ वेदांत डटे हुए हैं। वक्त बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस मुकाबले में। अभी समय की बात करें तो 3:07 का समय हो गया है। वेदांत एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। एक तरफ अब बल्लेबाज नॉस्टेकर, इन पर आप वेदांत को देखेंगे। सूरज वेदांत की जोड़ी मैदान के अंदर। अब जब राजू विकेट मिला तो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ने वाला है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, स्ट्राइकर एंड पर, फील्डिंग में एक बार पे थोड़ा सा बदलाव, फ्लाइंग स्लीपर खिलाड़ी है, पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर, उसके साथ मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी मौजूद है, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर जाती भी गेंद, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा। बेबन इस मुकाबले में कमाल कर रहे हैं। बेबन ने किया दूसरा शिकार, शानदार प्रदर्शन। प्रदीप यांच्याकडून आणि मगाशी म्हटलं मी तुम्हाला की 8 विकेट गेल्यानंतर ज्या 26-12 चेंडूमध्ये झाल्या त्या डोकेदुखी ठरतील का? पहिल्याच पॉवर प्ले मध्ये मी म्हटलं होतं 2 ओव्हरच्या निर्णायक ठरल्या तर 58 देखील या ठिकाणी डिफेंड, कारण याच मैदानावर राजेंद्र सानपच्या दुसऱ्या पर्वामध्ये जर आपण पाहिलं ट्रॉफीच्या संपूर्ण या स्पर्धेचे जे 8 पर्व पाहिले तर त्यामध्ये 36 चेंडूमध्ये 40 देखील धावा झाल्यानंतर जे ब्रह्मा बॉईज कडून शुर्विक रायगडचा खेळाडू ज्याने जबरदस्त गोलंदाजी केली होती आणि सामना जिंकून दिले होता, या ठिकाणी देखील तो कॉन्फिडन्स मिळालेला आहे। हॅट्रिक साठी प्रदीपजी यांच्याकडून 1000 रुपये देवेंद्र। कीर्तिमान के दहलीज पर बेबन आप देख सकते हैं जो लगातार 2 झटके दिए हैं ऑन हैट्रिक। टप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को शफल होकर खेल दिया ऑन साइड पर, डी स्क्वायर लेग पर, बॉडी पर खिलाड़ी तैनात। जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। रन संख्या 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर बल्लेबाज वेदांत के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और 2 गेंदों की कहानी अगर देखें तो बढ़िया गेंदबाजी, टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं और लेफ्ट हैंडर के लिए भी परफेक्ट इन्होंने गेंदबाजी की है। और उछाल में रहा है, टप्पा खाने के बाद उछाल में रहा है, बल्लेबाज थोड़ा सफल हुए थे और राजू गेंद को थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर रखते हुए अच्छी गेंदबाजी बेबन द्वारा, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। नक्कीच अप्रतिम गोलंदाजी। या अगोदर अंकुर सिंगला आपण पाहिलं होतं ट्रायडन नवी मुंबईकडून, आणि आता मात्र बेवेन तोच टप्पा पकडून टाकतोय, बॅट्समनला अडचणीत आणतोय। इस बार फ्रंट फुट पर गेंद को खेलते सभा में गेंद थी, खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है, 1 रन दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। यहां बिल्कुल खतरा है, रनआउट का मौका और 2 का, एक बार 2 की मांग हो रही थी, यहां गलती करते हुए खिलाड़ी। तालमेल में कमी आई है, 2 की हो रही थी मांग, तालमेल की कमी कारण बल्लेबाज का हो गया काम तमाम। क्या इसकी जरूरत थी? 1 रन आपने लिया था, बल्ले के बीचों बीच आप खेल रहे थे, उसी वक्त आपने गलती की है। नक्कीच मोठी चूक आपण म्हणू शकतो। जी स्थिती आहे त्याप्रमाणे तुझी मनस्थिती परिस्थिती बदलण्यासाठी आवश्यक होती, मात्र त्या ठिकाणी चूक झाली। करण चव्हाणने छान थ्रो टाकला आणि या ठिकाणी तिसरा धाव संख्या 2। अडचणीमध्ये संघ आहे, स्ट्रगल करत आहेत, मात्र या ठिकाणी कमबॅक करतोय चॅम्पियन्स किंग स्पोर्ट्स संघ। श्री साई की टीम में का बहुत अच्छी तरह जरूर टीम है, बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं और काफी ऑफ स्टंप के बाहर जाके गेंद को खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर बल्ले का अनुनी किनारा, भाग्य का सहारा, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन।
हेमन के नाम पर 2 जाएंगे और फील्डिंग बहुत ही बढ़िया हुई है। तो रनआउट के तौर पर एक बल्लेबाज, जैसे कि वेदांत की आप चर्चा कर रहे थे, उनका विकेट बहुत ही बेशकीमती विकेट था। इस ओवर की जो शुरुआत है वो बहुत ही कमाल की हुई है। अच्छा स्टार्ट दिया बेवन ने अपनी टीम के लिए। खूप सुंदर अशी आपण सुरुवात म्हणू शकतो बेवेनने. कॉन्फिडन्स वाढलेला आहे. चॅम्पियन किंग स्पोर्ट्स संघ आता हीच या ठिकाणी तयारी करणार आहे की आपल्या प्रत्येक गोलंदाजाला जो मोमेंटम मिळालेला आहे तो पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न निश्चित असेल. जयेश, सुनील बामणे, आपलं देखील हार्दिक स्वागत. आणि हेच करणं गरजेचं आहे, कारण या ठिकाणी जर थोडीशी चूक झाली तर सुद्धा समोरचा संघ, प्रतिस्पर्धी संघ पुन्हा एकदा डोकं वर काढू शकतो, कमबॅक करू शकतो. बिल्कुल साझेदारी की जरूरत है। 3 विकेट गिरने के बाद नए बल्लेबाज मैदान के अंदर सुफियान और चंदन, जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी और काबिलियत है दोनों के पास। दूसरा ओवर फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ प्रदीप को मौका मिला है और कॉम्बॉकिन से गेंदबाजी करने के लिए वो तैयार। फील्डिंग की जमामंडी की इस वक्त फ्लाइंग स्लीपर खिलाड़ी मौजूद है। गली पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, पावर प्ले का यह दूसरा ओवर। प्रदीप गेंदबाजी करेंगे। प्लेटफॉर्म इनके लिए बना हुआ है। पहले ओवर में केवल 6 रन आए हैं। बेवन ने शानदार गेंदबाजी की है। ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, उसके बाद में डिप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है। ओ बाहरी किनारा लगा था, मौका बिल्कुल था। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल तो मिल रहा है। इस गेंद को फ्रंट फुट पर ज्यादा नहीं खेल पाए, ज्यादा आगे नहीं आए थे। बल्ला बिल्कुल गेंद की तरफ चला गया, बल्ले को गेंद लगी, विकेट कीपर ने कैच नहीं पकड़ा। जीवन दान न मिलता हुआ बल्लेबाज को। रन संख्या फिलहाल 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 7 धावा आपण पाहतोय 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. अजून एक संधी होती बघा, 2 जर आपण बॅक टू बॅक चेंडू पाहिले पहिल्या षटकातील शेवटचा, ज्या ठिकाणी चौकार आला आणि आता एक झेल सुटला जीवनदान. हे काही महत्वाचे जे आहेत क्षण ते तुम्हाला टिपणं गरजेचं आहे. कैचेस विन मैचेस, पकड़ोगे कैच तो जीतोगे मैच, छोड़ोगे कैच तो हारोगे मैच. यही फंडा यहाँ पर आवश्यक है. गेंदबाजी के लिए प्रदीप तैयार. कदमों का इस्तेमाल किया था, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा। बल्लेबाज प्रेजेंट ही लगा के वापस जा रहे हैं। अब बल्लेबाजों के लिए राजू गाना बज रहा है। आया रिटर्न में गिरते जा रहे थे। अभी वही कहानी, गेंदबाजी बहुत बढ़िया हो रही है दोनों तरफ से। म्हणून मगाशी म्हटलं मी, जेव्हा पहिली इनिंग संपली पहिला डाव, तेव्हा 12 चेंडूमध्ये त्या 26 धावा, क्रमांक 9 आणि 10 ने जे एक मोठं संकट बनू शकतं. आणि बघा मंदार जो या संघाचा एक आधारस्तंभ आहे, ज्या ज्या वेळेस शिंपोलीचे संघ समोर येतात त्यावेळेस नक्कीच विनेश माळी, त्यानंतर हा खेळाडू समोर येतो राहुल यादव आहे, पंधेरे बंधू. मात्र मंदारवरती जबाबदारी असेल की ही आता इनिंग कशा प्रकारे आपल्या सोबत सुफियानला घेऊन चालावं लागणार आहे. कारण 2 ते 3 ओव्हरमध्ये तुम्ही 18 बॉलमध्ये किमान 20-25 तरी धावा केल्या तरी तुम्हाला एक कॅल्क्युलेशन करायला मिळेल की 18 बॉलमध्ये उर्वरित आपल्याला 20-25 करायचे आहेत. मात्र या ठिकाणी बाजू मजबूत आहे, ती म्हणजे चॅम्पियन 11 किंग स्पोर्ट्स संघाची. त्यांनी कमबॅक केलंय आणि त्यांच्याकडे मोमेंटम आपण शिफ्ट होताना पाहायला मिळतो, कारण 4 गडी बाद झालेत आणि धावसंख्या 7. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। अपने बोरिंग मार्क पर प्रदीप, राइट अप ओवर द विकेट। टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद, और इस वक्त अगर देखें तो अंपायर का क्या इशारा होगा, बहुत उछाल लेते हुए गेंद, उड़ान लेते हुए गेंद विकेट कीपर की तरफ चली गई। 1 बाउंस का इशारा अंपायर कर रहे हैं। और इस विकेट पर हमने बहुत बार देखा, टप्पा खाने के बाद उछाल तो मिल रहा है, लेकिन आपके पास बाउंसर है, आपके पास एक बार फिर वो गति है, तो बिल्कुल आप बाउंसर डाल सकते हैं, लेकिन उसकी दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल वो गेंद सर की तरफ होनी चाहिए, आंखों की तरफ होनी चाहिए, तब जाकर आपको वो फायदा मिलता है। अपने के बाहर बाहरी किनारा। राजू, इस मुकाबले में बल्लेबाज बल्ले के बीचों बीच नहीं खेल पा रहे हैं। दोनों तरफ वही कहानी है, किंग स्पोर्ट और राजन 11 अगर टॉप ऑर्डर या मिडल ऑर्डर की बात करें तो उसी तरह से खेल रहे हैं, उसी अंदाज से खेल रहे हैं। नक्कीच मला दुसरी मॅच आठवते, मार्शल 11 विरुद्ध ट्रायडन नवी मुंबई. ज्यावेळेस ट्रायडन नवी मुंबईच्या विकेट गेल्या होत्या आणि त्यावेळेस एकेरी दुहेरी धावांवर भर दिला होता. योगेश पवारने संयमाने खेळ केला होता आणि त्यानंतर गेअर चेंज केले. आता देखील तीच परिस्थिती आहे, मनस्थिती बदलावी लागेल आणि त्या प्रकारे खेळ करावा लागेल शिंपोली या संघाला. स्ट्रोक अच्छा है, एक बार फिर गैप पे खेलते हुए टाइमिंग बढ़ गया, लेकिन बाउंड्री लाइन पर डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक कि गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया है। सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 9 रन 4 विकेट के नुकसान पर। विपरीत स्थिति में आपको बेहतर प्रदर्शन करना है,
आप एक बार फिर बल्लेबाज के तौर पर छठे या सातवें नंबर पर भी खेलते हैं, तो आजकल छठे सातवें नंबर पर बल्लेबाजी अच्छी हो जाती है। बढ़िया तरीके से बैकफुट चले गए, पॉइंट पर खेलते हुए 1 रन मुकम्मल किया, यह बेहतर है। जो पहले 2 ओवर की जो कहानी है जिसमें आपने देखी तो रन संख्या कुल मिलाकर 10। इस ओवर की बात करें, ओवर की समाप्ति 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन संख्या 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं राजन 11 जीती मराठा शिंपोली बनाम किंग्स 11 स्पोर्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है और राजेंद्र सानप मेमोरियल ट्रॉफी का आज का राजू ये पहला दिन है जिसमें बल्लेबाज इस पहली Position, and that kind of contribution is required from both the batsmen, Mandan as well as Sufyan. They have to just play their natural game, but basic पर ध्यान देना होगा। इस मैच में कमबैक करना है तो फिर एक बार बेवन कमबैक करेंगे या नहीं। 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर प्रमुख गेंदबाज के तौर पर बेबन गेंदबाजी करने के लिए तैयार। टप्पा खाने के बाद तो चालित में गेंद को ऑन द टोस खेल दिया, पॉइंट पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। करण ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के पास अवसर था 1 रन लेने के लिए। अगर आपको टॉप पर जाना है ना तो आपको नॉन स्टॉप अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है, निरंतरता की जरूरत होती है, आपको स्कोरबोर्ड को चलाने की जरूरत है। विकेट्स आर फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल, दैट्स द प्रॉब्लम फॉर बैटिंग साइड एंड नाउ नीड अ पार्टनरशिप। फैंटास्टिक बॉलिंग बाय बेबन, बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। फुल टॉस के ऑन साइड पर खेलते हुए लॉन्ग ऑन क्षेत्र में बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मुकम्मल किया, 1 से ज्यादा नहीं है और पहले 2 गेंदों पर 2 सिंगल, रन संख्या अब 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर। नक्कीच 12 धावा आपण पाहतोय, 4 गडी बाद 30 षटक मार्गस्थ आहे आणि बेबेनला देखील कल्पना आहे की या ठिकाणी आपल्याला जर अजून ब्रेक थ्रू मिळाला तर संधी आहे। दुसऱ्या बाजूला राजन 11 जिद्दी मराठा शिंपोली संघ देखील कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करणार, मात्र हा उंच टोलवतोय, बघूया चेंडू नाही। कैच लपका गया। अब फिलहाल स्कोर देखिए कुल मिलाकर 12 रन 5 विकेट के नुकसान पर और राजू 5 बल्लेबाज डगआउट में आराम फरमा रहे हैं। नक्कीच ज्या प्रकारे या ठिकाणी आपण सामना ज्या स्थितीमध्ये फिरताना पाहायला मिळतोय, बघा गौरांग सारखा बॅट्समन तुमचा अजूनही डेप्थ बॅटिंग लाईनअप आहे, जे मगाशी आपण जर पाहिलं तर नट्टू आणि प्रतीकने जे बॅटिंग केली, ज्या ठिकाणी कमबॅक केलंय, तर या ठिकाणी गोलंदाजीमध्ये मग म्हटलं होतं की पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये सामन्याचं गणित समीकरण बदलेल आणि तेच पाहायला मिळतंय। बेबन आपला क्लास, आपला दर्जा, आपला स्टँडर्ड या ठिकाणी दाखवतोय आणि किंग स्पोर्ट्सला दाखवतोय की यस वी आर इन मैच, या ठिकाणी आपण या डिफेंड करू शकतो। बिल्कुल, इस वक्त बल्लेबाजों को भी एक बार फिर बताना होगा कि हम रन बना सकते हैं। गेंद को बढ़िया तरीके से खेलते हुए गैप पे गेंद है और एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी है वो थोड़ा कवर पॉइंट क्षेत्र की तरफ चले गए थे गेंद को रोकने के लिए। अपने पूर्व अनुमान के साथ 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए है। स्कोरबोर्ड को चलाने की जरूरत है। गौरांग नंबर 7 पर आए हैं 5 विकेट खोने के बाद। रन संख्या कुल मिलाकर अगर देखें तो 13 रन, 13 पर लॉस ऑफ 5 विकेट। फुल टॉस गेंद, मौका मिला, खराब गेंद तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है। फुल टॉस गेंद पर डाउन द ग्राउंड शानदार छक्का। much
डेप्थ बॅटिंग लाईनअप आहे. गौरांग जर तुमचा 6वा-7वा क्रमांकावर येतोय याच्या अनुषंगाने तुम्हाला विचार करावा लागेल, कारण मंदार बाद झाल्यानंतर सुफियानने 2 सलग षटकार खेचले. कॉन्फिडन्स गौरांगचा देखील मेलूचा वाढणार आहे, कारण गौरांग आणि सुफियान या दोघांना बोलावं लागणार एकमेकांशी की मॅच आपल्या हातामध्ये आलेली 18 बॉलमध्ये 33 म्हणजे केवळ 2 ते 3 षटकारांची मॅच आहे. मात्र ते चेंडू आपल्याला निवडावे लागणार, आपल्याला मॅचला पुढे घेऊन जावं लागणार आहे. अजून एक छोटीशी पार्टनरशिप जी निर्णायक ठरू शकते. बिल्कुल, अभी 18 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत है और पिछले 2 अच्छे स्ट्रोक 2 छक्के आए तो एक बार फिर देखे इस मुकाबले में किंग स्पोर्ट को चर्चा करने के लिए मजबूर किया गया है. और मैं विनती करूंगा साइब 11 के कप्तान और दूसरी तरफ कुर्दुमेश्वर टीम के कप्तान को आप रेडी रहे अगले मुकाबले के लिए. Now remaining 18 deliveries and need 33 run to win this match. Very good battle going on here between bat and ball. चर्चा करने के लिए मजबूर किया गया था. चर्चा तो बिल्कुल यहाँ हमारे कॉम्बॉस में भी हो रही है. हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजू कुले है. इससे पहले बाल सुब्रमण्यम अय्यर, इनकी आवाज आपने सुनी थी. गेंदबाजी में बिल्कुल अब अभिषेक को मौका मिला है. गौरांग और सुपियान की जोड़ी एक बार फिर अच्छे तालमेल के साथ खेलती हुई, खास करके बल्लेबाज सुपियान जिनके बल्ले से खूबसूरत स्ट्रोक आए. डीप स्टक पर बाउंड्री की तरफ एक अच्छा स्ट्रोक था और उसके बाद में बॉलर के सर के ऊपर से डाउन द ग्राउंड एक अच्छा छक्का इनके बल्ले से आया था. अभिषेक तैयार जो एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, अपने कंधों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं. टप्पाखाने के बाद अंदर की तरफ आई गेंद, लेन गेंद थी. ऑन साइड पर गेंद को कलाई के साथ मोड़ना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई है. लेग बाय का इशारा अंपायर कर रहे. रन संख्या फिलहाल स्कोर बोर्ड थोड़ा सा आगे बढ़ता है. 17 गेंदे हैं, जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत. नक्की 17 चेंडू आणि 32 धावांची गरज. अभिषेक माने मॅन फ्रॉम अंधेरी डीएन नगर अजून एक जबरदस्त गोलंदाज. कारण जेव्हा जेव्हा गोलंदाजीला येतो तेव्हा पॉपिंग कीच्या जवळ आल्यानंतर एक वेगळा आवाज निघतो. ज्या पद्धतीने प्रज्योत हंबे आपण याला पाहतो प्रज्योतला, आणि त्या पद्धतीने हा देखील आहे. बघूया काय घडणार आहे, कारण या ओव्हरमध्ये हेच आवश्यक असेल. जेवढं शक्य होईल तेवढं तुम्हाला मॅच पुढे घेऊन जावी लागेल आणि ती जबाबदारी स्वीकारावी लागेल सुफियानला. अभिषेक माने अपने बॉलिंग मार्फत तैयार. राइट अप ओवर द विकेट. अच्छी गेंद थी, ब्रॉक होल में खोद के निकाला. लॉन्ग क्षेत्र में खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात है. थोड़ा सा फंबल हुए, इसका फायदा उठाने की कोशिश. विकेट की पिच, अच्छी दौड़, जोरदार अपील. अंपायर ने नॉट आउट कहा, कोई नुकसान नहीं है. बहुत ही जबरदस्त खेल मैदान के अंदर होता हुआ शानदार मैच है. अभी आपके पास गेंदों की बात करें तो 16 गेंदों का खेल से 31 रनों की जरूरत है. मुकाबला जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है. शानदार मैच यहाँ विकेट के बीच. राजू अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी. और बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जिस तरह से दौड़ रहे थे ऐसे लग रहा था कि गौरांग वहां पर डेंजर में थे. खतरा था वहां पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर, लेकिन थोड़ा लॉन्ग ऑन पर फंबल हुआ था जिसका फायदा उठाया और 2 रन यहां पर मुकम्मल. 2 रन का इजाफा. ये मैच निर्णायक मोड पर. 30 रन की जरूरत. 16 गेंदे. गेंदबाजी के लिए तैयार अभिषेक. स्ट्राइक पर सुफियान. अगली गेंद. इस बार थोड़ा इंजर आउट खेलने का प्रयास किया गया था. गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रैवल घूम 1 रन मुकम्मल किया. दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं. विकेट के बीच एक बार फिर कमाल की दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी. खेल का रंग बदला है. पहले 3 ओवर की कहानी देखें तो बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, लेकिन गौरांग और सुफियान मैदान के आने के बाद बिल्कुल खेल का रंग बदला है. मजा आ रहा है मैदान के अंदर. नक्कीच खेळाचा रंग बदलते म्हणून आपण म्हणतो ना की काळ आणि वेळ बदलायला वेळ लागत नाही. मात्र जर तुमचा जीवनामध्ये ताळमेळ व्यवस्थित असेल तर काळ आणि वेळ बदलू शकते. ते या ठिकाणी दाखवतायत सुफियान आणि गौरांग. 15 गेंदों का खेल शेष. 28 रनों की जरूरत है. एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस. संकट के समय हर छोटी चीज जो है वो काउंट होने वाली है. अब कप्तान अपने गेंदबाज के साथ चर्चा कर रहे हैं. सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए. चर्चा होनी चाहिए. बीच मैदान पर वो थोड़ी चर्चा भी हो रही है. अभिषेक माने राइट अप ओवर द विकेट. बैकफुट में चले गए. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. मिस टाइम शॉट. विकेट कीपर भाग रहे हैं लेकिन राजू कैच नहीं हो रहा है. एक बार फिर फंस गए थे बल्लेबाज. अच्छी गेंद थी और अभिषेक माने के बाद बाउंसर बहुत अच्छा है. बाउंसर बहुत अच्छा डालते. ये अच्छी गेंद थी. एक बार फिर फंसाया था लेकिन भाग्य का साथ सुफियान को मिलता हुआ और भाग्य हमेशा बहादुर का साथ देता है. यस, करेज इज द बेस्ट वेपन इन डेंजर. संकट समय में आपका शौर्य साहस यही प्रमुख शस्त्र होता है. यही दिखाया. लेकिन एक मौका था, कॉल देने की जरूरत थी. जहां पर यह विकेट मिलता तो शायद फिर एक बार उलटफेर हो सकता था, लेकिन कमबैक किया है. एक साझेदारी पनप रही है. उसे भेदने का यहाँ पर मौका मिला था लेकिन नहीं कर पाए. 14 गेंदों का खेल से 27 रनों की जरूरत.
फील्डिंग की बात करते हो, फ्लाइंग स्लिप है, गली है, एक खिलाड़ी बिल्कुल इस वक्त एक्स्ट्रा कवर बॉडी लाइन की तरफ मिड ऑफ पर खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। राइट आर्म ओवर द विकेट अभिषेक माने काफी ऑफ टाइम के बाहर जाके गेंद को खेलना चाहते थे क्षेत्र की तरफ, और फिलहाल गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई थी। फाइन लेग पर बढ़िया फील्डिंग हो रही है। आपके पास 13 गेंदें हैं और जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है आज का किंग स्पोर्ट और राजद 11 के बीच, एक अच्छा बैटल जरूर बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं। 13 चेंडू 26 धावांची गरज, हा चेंडू निर्णायक सुफियान, या चेंडूवर चौकार येणार की षटकार. आकाश देखील सांगतो अभिषेकला हा शेवटचा चेंडू तुला निर्णायक टाकावा लागेल, जिथे मॅच टर्न होणार आहे, जे मॅचचं गणित समीकरण बदलणारा हा महत्वाचा बॉल असेल. बघूया हा ड्रीम बॉल असेल का. आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर बिल्कुल चल रहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अभिषेक माने ऑन साइड पर प्ले किया, खिलाड़ी बॉडी लाइन पर तैनात लिया कैच। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है, जंग चढ़ा है क्रिकेट का। छठे विकेट का पतन हुआ। 12 गेंदों का खेल शेष, जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है। अभी भी मुकाबला बहुत अच्छा चल रहा है। नक्कीच 12 बॉल आणि 26 धावांची गरज आहे. 13 धावांची सरासरी प्रत्येक षटकामागे आणि ती क्षमता आहे. गौरांग याने याच मैदानावर अशा प्रकारचे कित्येक मॅचेस आपल्या संघाला जिंकून दिलेले आहेत. पाणी घेऊन जायचं आहे. मी संयोजकांच्या वतीनं आपले व्हॉलेंटियर्स आहेत त्यांना विनंती करतोय की आपण पाणी ट्रॉफी 2023 पर्वामध्ये उपस्थित या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी उपस्थित निखिलजी पाटोळे साहेब, आपलं देखील हार्दिक स्वागत. गोलंदाजीसाठी येते प्रदीप, स्ट्राइकला गौरांग. 12 बॉल आणि धावांची गरज 26. अच्छा स्ट्रोक, कैप पे खेलते हुए टाइमिंग बढ़िया, डीप स्ट्राइक कवर पर बॉडी पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए है और इसी सिंगल के साथ अब सभी के रन देके 11 गेंदे 25 रनों की जरूरत है। बीच मैदान पर एक जबरदस्त घमासान आप देख रहे हैं। किंग्स स्पोर्ट बनाम राजन 11, उसके बाद में श्री साई 11 और गदुमेश्वर बॉयज. तर रमजान आता आहे मॅन फ्रॉम गोरेगाव. फिरोजला आपण रायगडकडनं खेळताना पाहतो, जो त्या परिसरामधून बिलॉंग करतो त्याच परिसरातला हा खेळाडू आहे. हार्डी टर्न, खाली राहतोय चेंडू. प्रदीप याने पाहिलं होतं बॅट्समनचा फॉलो थ्रू काय आहे, जो स्टान्स काय आहे, ज्या पद्धतीने तयार होता, रीड केलं त्याला, आणि हेच आवश्यक असतं. एखादा गोलंदाज धूर्त चतुर केव्हा बनतो, ज्यावेळेस तो पाहतो बॅट्समन कोणती स्टाईल त्याची आहे, कोणत्या स्टाईलने खेळणार आहे, काय स्टान्स आहे, आणि त्या अनुषंगाने आपल्याला गोलंदाजी करणं गरजेचं आहे. चांगला टप्पा, नियंत्रण. 10 गेंदों का खेल अभी भी फिलहाल शेष, 10 गेंदों का खेल शेष है। 25 रनों की जरूरत है। और देखिए बल्लेबाज मन बना के खेल रहे हैं, बैकफुट पर खेलना चाहते तो टेलीग्राम मिल गया प्रदीप को। राइट आर्म ओवर द विकेट, आगे गेंद है और गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, बल्लेबाज फंस गए हैं। विकेट कीपर ने अपना काम कर दिया, तो बल्लेबाज एक तो स्ट्राइकर के बल्लेबाज बैक टू द पेबल जाएंगे। रमजान बैट एक बार फिर बल्ला घुमाने का जो प्रयास किया गया था, फुल गेंद थी, तेज रफ्तार की गेंद थी राजू। अब लेट हुए और बल्लेबाज को बीट किया, विकेट कीपर ने अपना अच्छा काम किया। गौरव अपने पास स्ट्राइक रखने का प्रयास करेंगे और
अब एक विकेट सैक्रिफाइस करेंगे रमजान। मैदान के अंदर प्रदीप का जलवा आप देख रहे हैं। नक्कीच रमजान परततोय, मात्र रमजान ज्या पद्धतीने बाद झालेला थोडासा तो देखील नाराज आहे, कारण मला कल्पना आहे ज्या प्रकारचं क्रिकेट तो देखील खेळतो हार्ड हिटर, मात्र ज्या प्रकारचं टायमिंग होत आहे त्यामुळे नक्कीच आपली विकेट सॅक्रिफाईस करतोय आणि स्ट्राईकला आता मात्र गौरांग आहे शैलेश, ज्याने जबरदस्त टिचून मारा केला होता आणि पहिली 2 षटकं निर्णायक ठरली होती शैलेशची, तोच आता मात्र बॅटिंगला येतोय। दोन्ही संघाची जर पडझड पाहिली तर पहिली 3 ते 4 विकेट लवकर गेले, त्यानंतर मिडल ऑर्डर तेवढी चांगली नव्हती सक्षम, मात्र या ठिकाणी कमबॅक करण्याची संधी पुन्हा एकदा मिळेल। 10 चेंडू आणि धावांसाठी 9 चेंडू आणि धावांची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी 25। 9 balls 25 टू विन। प्रदीप अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है, टप ओवर द विकेट। टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई ऑनसेट पर उछाल कर खेलने का प्रयास किया गया था, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा प्रदीप द्वारा। लेंथ अच्छी है, नियंत्रण बहुत अच्छा है और कंट्रोल के साथ अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। 8 गेंदे और जीतने के लिए अभी भी 25 रनों की जरूरत है। सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं, सामने प्रदीप है, मैं छक्का कैसे मारूं। अगर ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। यहां मोमेंटम गेंदबाजों की तरफ है। फुल टॉस गेंद अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। गेंद को खेलते हुए कवर पॉइंट क्षेत्र में 1 रन जरूर मिलेगा, लेकिन राजू यहां इक्के दुक्के से बात नहीं बनेगी। आपको वो बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे। आपके पास गेंद शेष कुल मिलाकर 7 और 24 फासला बन रहा है और इसका कारण क्या है, अब गेंदबाज का हौसला बढ़ता। अच्छी गेंदबाजी प्रदीप द्वारा। नक्कीच आत्मविश्वास वाढणार आहे, कारण प्रत्येक बॉल बघा ज्या टप्प्यावर त्याने टाकल्या, गुडलेन स्पॉटवरनं काही खाली राहिले 2 बॉल जे मिळालेच नाही, अनप्लेबल, मात्र काही ठिकाणी नक्कीच पाहिलं जे यश मिळाले ते म्हणजे प्रदीपला। 7 बॉल आणि 24 धावांची गरज। निर्णायक चेंडू या अगोदरच्या आपण जर पाहिलं 13 बॉलमध्ये 26 असताना तो निर्णायक बॉल होता, तो ड्रीम बॉल होता, अभिषेकचा विकेट मिळाली का या चेंडूवर एखादा षटकार येऊन पुन्हा एकदा सामन्याचा गणित बदलेल का? प्रदीप तयार। अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, बैकफुट पर गेंद को खेलते हुए लॉन्ग अप पर खिलाड़ी मौजूद है। एक ही रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के लिए, लेकिन क्या प्रदीप की जबरदस्त गेंदबाजी थी। सटीक लाइन के साथ सदी भी गेंदबाजी, प्रेशर पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर। और इस मुकाबले में राजस्थान 11 के जो बल्लेबाज है राजू स्ट्रगल कर रहे हैं। 6 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। यह मुकाबला जिस तरह से बन गया है, यहां इस मुकाबले में कमबैक करने का मौका बल्लेबाजों के लिए है। जिस तरह से आज देखिए बल्लेबाजी किंग्स स्पोर्ट के सारे खिलाड़ियों ने टैलेंट ने की थी, उसी अंदाज से उसी इंटेंट के साथ आज क्या शैलेश बल्लेबाजी करेंगे या एक बार फिर गौरव के पास काबिलियत है, एक रिकॉग्नाइज बल्लेबाज उनके पास है। नक्कीच या ठिकाणी स्ट्राईकला असणारे शैलेश। 6 बॉल 23 धावांची गरज आणि गोलंदाजीसाठी आता मात्र येणार शेवटचा निर्णय। रेकॉर्ड होणार का? या अगोदर देखील या मैदानावर वेगळे रेकॉर्ड नक्कीच झालेले आहेत, वेगवेगळ्या खेळाडूंच्या नावावर रेकॉर्ड आहेत। अनिकेत शिंदे बुरली बॉयज यांनी देखील याच मैदानावर शेवटच्या मध्ये जबरदस्त बॅटिंग करून ज्यावेळेस 82 धावांचं लक्ष्य पूर्ण केलं होतं। जर पाहिलं पहिल्या पर्वामध्ये 69 धावा चेस करत असताना रोहित चतुर त्यांनी ते बॅटिंग केली होती, आणि त्या अगोदर जर आपण तिसऱ्या पर्वाचा विचार केला तर दांडी पालघरकडून जेव्हा विशाल तामोरे आणि बॅट्समन राकेश प्रभू एक ओव्हरमध्ये 19 धावांची गरज असताना सँडी एसपी संघ पराभूत झाला होता, आणि तिसऱ्या वर्षी सेमीफायनलला हॅट्रिक त्यांची हुकली होती। देसाई आणि श्रेयस इंदुलकर जेव्हा आशिष आगरकरच्या गोलंदाजीवर ते बॅटिंग विशाल तामोरे आणि राकेश प्रभूने केली होती। बघूया गोलंदाज सज्ज होते। 6 बॉल 23 धावांची गरज। नत्तू की पहली गेंद, ओ क्या जबरदस्त स्ट्रोक है, कड़क स्ट्रोक, गेंद बिल्कुल बॉडी लाइन की तरफ जाती भी 6 रनों के लिए सैक से करेंगे स्वागत। जबरदस्त यहां स्ट्रोक खेला गया, टप्पा बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ टर्म के बाहर, ऑन द राइज गेंद को खेलते हुए डीपेस्ट कवर बॉडी लाइन के बाहर जाते हुए गेंद 6 रनों के लिए जबरदस्त स्ट्रोक खेला गया। और मैदान के अंदर चल रहा है घमासान, टीवी रखे और गेम इज ऑन, गेम इज ऑन। 5 गेंदों का खेल है, जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। नक्कीच 5 चेंडू धावांची गरज आहे। 17 कोण जिंकणार ही उत्सुकता आहे। प्रदीप जो गोलंदाज या अगोदरचा होता त्याला प्रदीप कडूनच 1000 रुपये मिळालेले आहेत, जे प्रदीप त्यांचे हितचिंतक आहेत आणि शुभचिंतक आहेत, त्यांच्याकडनं ते प्राइज मिळाले। मात्र पहिल्या चेंडूवर षटकार आल्यानंतर शैलेश ज्याने गोलंदाजीमध्ये अप्रतिम कामगिरी केलेली आहे, आता संघासाठी पुन्हा एकदा संकट मोचक म्हणून उभा राहतोय। बघूया 5 मध्ये 17 होणार का? गोलंदाज सज्ज होतोय। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद, टप्पा खाने के बाद एक बार उछाली थी गेंद, चली गई। एक बार फिर गेंद बॉडी की तरफ जाती भी 2 रन लेने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास और 2 रन मुकम्मल किए गए हैं।
तालियां बजना एक बार फिर शुरू कर दिया दर्शकों ने। अब जाकर आपके पास गेंदे 6 से 4 जीतने के लिए बिल्कुल इस पक्का अगर देखें तो 15 रनों की जरूरत है और यह मुकाबला बिल्कुल रोचक होता हुआ। आकाश में राजू मुझे वो काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मैदान के ऊपर संकट के बादल जरूर बनाते हुए, लेकिन एक बार फिर संकट के बादल किसके ऊपर बना रहे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नक्कीच आने वाला समय बनाएगा। यहाँ पर जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर कमबैक करना होगा। 4 गेंदे और जीतने के लिए रनों की दरकार 15 रन। तो यहाँ पर शैलेश की बल्लेबाजी होगी, क्या अलग उलटफेर करेंगे गेंदबाज। रत्तू तैयार अपने बोलिंग बार पर फील्डिंग की जवाब दे के इस वक्त फ्लाइंग स्टिप गली पॉइंट एक डीप स्टेकर पर खिलाड़ी तैनात है। टपकाने के बाद थोड़ी सी नीचे गेंद आंसर पर खेलते हुए गैप में काउ कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी जा रहे हैं। 1 रन मुकम्मल किया, थोड़ा सा फंबल हुए है लेकिन गौरांग ने बना किया है। 1 रन के साथ अब आपके पास 3 गेंदे हैं और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान पर चलता हुआ, कभी धूप है तो कभी छाया है और यही तो इस खेल की माया है। क्रिकेट का खेल जो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, निश्चित तौर पर अनिश्चितताओं से भरा हुआ। इसीलिए जो पहली इनिंग हुई थी तो मैंने कहा था वो 12 गेंदे 26 रन प्रतीक की जो वहां पर प्रतिज्ञा थी वहां पर सफल होगी, वही नजर आ रहा है। अब 3 गेंदे कंपलसरी 2 हिट की जरूरत। अच्छी गेंद। अब यहां पर चैंपियन किंग्स स्पोर्ट्स कमबैक कर रहे हैं। शानदार, बहुत अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद उछालते हुए बैकफुट पर जाके गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन इस वक्त एक अच्छी गेंद डालनी थी गेंदबाज नत्थु को, तो इन्होंने डाली है। 2 गेंदे और 14 रनों की जरूरत है। पहली ऐसी टीम है जो आज स्कोर जो है वो डिपेंड करने जा रही है, लेकिन अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है। अभी आपके लिए 2 गेंदें बची हुई है, 14 रनों की जरूरत है। प्रेशर पूरी तरह से राजन 11 जीती मराठा शिंपोली के ऊपर। बाहरी किनारा विकेट कीपर का सहारा। नत्थु बल्लेबाजी करते हैं, नत्थु गेंदबाजी करते हैं। नत्थु केवल एक बार फिर खिलाड़ी नहीं है, वो ऑलराउंडर है और गेम चेंजर बन रहे हैं। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, खूप सुंदर गोलंदाजी। नट्टूचं आपण कौतुक करू तेवढं कमी. अष्टपैलू कामगिरी. संघाला जेव्हा गरज होती तेव्हा स्वतः उभा राहिला तिथे, लढवला, झुंज दिली, संघाला 57 पर्यंत घेऊन गेले आणि ज्यावेळेस निर्णायक षटकार आल्यानंतर देखील उर्वरित 5 चेंडू ज्या टप्प्यावर त्याने टाकलेले आहेत इथून नक्कीच या ठिकाणी विजयी गाथा तयार केली आणि पहिला संघ ठरेल ज्याने पहिली बॅटिंग करून त्या धावा डिफेंड केलेल्या आहेत तो म्हणजे चॅम्पियन किंग्स स्पोर्ट. खरोखर चॅम्पियन असल्याप्रमाणेच खेळला. जी सुरुवातीचे बेबेनचे पहिल्या षटकातले 5 चेंडू 2 विकेट आणि त्यानंतर ज्या प्रकारे पडझड झाली तर कोणतीच संधी दिली नाही असं वाटलं होतं मध्ये. सुफियान आणि गौरांगने कमबॅक केलं होतं, मात्र पुन्हा एकदा कमबॅक केलं की म्हणजे किंग्स स्पोर्ट संघाने. शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन नत्थु द्वारा और किंग्स स्पोर्ट जो चैंपियन की टीम है फिलहाल जीत की दहलीज पर. और इसी के साथ और एक विकेट, बिल्कुल और एक विकेट मिलता हुआ. नत्थु कमाल कर रहे मैदान के अंदर. और चैंपियन वही होते हैं ना जो राह की बाधा को सफलता की सीढ़ी बनाते हैं. जब एक बार फिर बल्लेबाजी कर रहे थे विपरीत स्थिति में, वहां बहुत अच्छी बल्लेबाजी की नत्थु ने. अब जाकर यहां से डिपेंड करना था और पहली गेंद पर छक्का आने के बाद नत्थु ने अच्छा कमबैक किया. बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है इस मुकाबले में. चैंपियन किंग्स स्पोर्ट वेलकम एंड वेल डन. अब जाकर अगला मुकाबला सीसाई 11 और गड्डुमेश्वर बॉयज. चला दोन्ही संघांना विनंती करतोय जो टॉस झालेला फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. गड्डुमेश्वर बॉयज आपणास विनंती राहील जास्त वेळ घ्यायचा नाही, कारण बघा 5:45च्या अगोदर आपल्याला संपवायचं या ठिकाणी. आताच 5:45. श्री गड्डुमेश्वर कृपा संघ, येस, श्री गड्डुमेश्वर कृपा संघ या संघाला आपण पाहणार आहोत जो क्षेत्ररक्षण करणार आहे आणि सलामीची जोडी या ठिकाणी येणार आहे श्री साई 11. यानंतर तुम्हाला घेऊन जाणार प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये या ठिकाणी प्रशांत आदवडे असणार आहेत आणि यानंतर पुन्हा एकदा पुढील इनिंगला सुरुवात होईल त्यावेळेस आमच्याबरोबर कमेंट्री बॉक्समध्ये बालसुब्रमण्य अय्यर सर आणि पुन्हा एकदा प्रशांत आदवडे. मॅन ऑफ द मॅच जबरदस्त बॅटिंग करणारा, ज्याने संघासाठी आधार